Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lesson number 5. दोस्तों हमने इसके पहले 4 जो लेक्चर हुए हमें उसके अंदर हमने देखा कि what is the necessity of subject surveying. Then we have seen that for various engineering projects to start with the planning, drawing, design, estimation, first we have to get the data or the information where on that ground the engineering project we have to start. So getting the data from the field, that work is the mainly work for our surveying, particularly for engineering design data. So for that we have seen that there are different classification of survey. In the lesson 2 that we have seen different classification of survey. And now in previous lecture we have also seen that there we can use the different instrument for surveying, and then we have to use the different conversion units for measurement of the particular entity from the field. तो सर्वे के अंदर जनरली मेनली हम लोग डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन, ये 3 चीज़ों का मेजरमेंट हम लोग करते हैं. सो व्हेन वी आर ऑल डूइंग दिस मेजरमेंट, so we have to also keep in mind the accuracy and precision. So in previous lecture number 4 we have seen that the concept of difference between the accuracy and the precision. Also we have seen that various sources of errors are there, particularly the instrumental error, personal error and natural error. So हम लोग जब फील्ड में काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर है उसके वजह से जो एरर हमारे मेजरमेंट में आएंगी, दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर में बी देयर. और सिमिलरली व्हेन एज ए सर्वेयर और एज ए पर्सन वी आर यूजिंग द हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटिंग द इंस्ट्रूमेंट, because of that also there may be chances of error are there. And sometime because of the natural phenomena there is the variation in our observation and they causes the natural error. So that also we have seen, because of the different sources of error in our measurement there may be a chances of error. So for that, what is the permissible error, that also we have seen, and what is the law of probability. So how we can control that error, that we have to understand. Then we have seen the important category, that is cumulative error and compensative error. हमने देखा कि cumulative error जो है ये इसकी साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये बढ़ते जाती है और उसका लार्ज इम्पैक्ट होता है हमारे ऑब्जर्वेशन पे. एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंपेंसेटिंग एरर एंड द नेचर ऑफ द cumulative error. So that difference also we have seen in previous lecture. Now with this, now we have to go further that how this elimination of error is possible. So there are different chances of error, sources of error, kinds of error, or cumulative and compensative errors may be there. And also we have to see that, for example हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि हमारा मेजरमेंट 423.65 है, तो यहाँ पे डॉट के बाद में 2 डिजिट है हमारे. सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन राइट डाउन 0.005 एंड दैट यू कैन कंसिडर एज योर मैक्सिमम एरर. तो जितने डिजिट है उतने 0 लगा के उसके आखिरी में 5 लगाने का, यानी ये हो गई आपकी मैक्सिमम एरर दैट कैन बी ऑकर. अब ये मैक्सिमम एरर पॉजिटिव भी रह सकती है और निगेटिव भी रह सकती है, इसलिए इसके आधा यानी 0.0025 इतनी आपकी पॉजिटिव एरर हो सकती है एंड इतनी आपकी निगेटिव एरर भी हो सकती है. सो प्रोबेबल एरर में बी 0.0025 इन दिस ऑब्जर्वेशन. सो लाइक वे फॉर एनी मेजरमेंट you can decide that what could be the maximum error and what could be the probable error. अब ये जो एरर है हमारी, ये एरर को हमको एलिमिनेट करते आना चाहिए, इसलिए हमने परमिसिबल एरर कितनी है ये भी हमने पिछले लेसन में देखा कि हाउ द परमिसिबल एरर मे बी देयर, एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट द एरर. सो इन दिस लेसन नंबर 5 वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस elimination of error is done. So here first of all we have to understand कि हमने किसी भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया यदि हमने और उसमें यदि एरर है तो हमको फिर डिपेंडेंट ऐसे एक वैल्यू हमको लगेंगी कि एक डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, और मैंने उसको
अलग अलग 2-3 बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से या अलग अलग मेथड से उसको गिन लिया, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस यदि मुझे निकालना है तो मेरे पास में एक ही डिस्टेंस के 4 ऑब्जर्वेशन है। तो 4 ऑब्जर्वेशन में से मैं कौन से ऑब्जर्वेशन को ज्यादा एक्यूरेट मानूंगा, तो ये बता नहीं सकते, क्योंकि हर टीम बदल गई, हर इंस्ट्रूमेंट बदल गया, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर हमारी बदल गई। और उसके वजह से यदि एक ही डायमेंशन या एक ही एंटिटी हम लोग बार बार गिनते हैं, सो देयर आर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस विल बी देयर, बट यू हैव टू डिसाइड विच ऑब्जर्वेशन इज मोर करेक्ट और विच ऑब्जर्वेशन इज देयर वेयर देयर इज ए लेस एरर। तो हमको ऐसा ऑब्जर्वेशन चाहिए जिसके अंदर लेस एरर हो। सो देयर इज वन सिंपल मेथड फॉर दिस एंड दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। यानी सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो भी डिस्टेंस की वैल्यू है उसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी वो वैल्यू हमारी वो डिस्टेंस की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन से दैट कि हमने यदि हमारा एक ऑब्जर्वेशन लेंथ गिना, हमने समझ लो यहां से यहां तक का एक ऐसा लेंथ गिना हमने, सो लेंथ ए बी ये है 3.285, ये एक ऑब्जर्वेशन आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन आ गया 3.095, तीसरा ऑब्जर्वेशन आ गया 0.105, चौथा ऑब्जर्वेशन आ गया 3.195। सो एक ही डिस्टेंस लेकिन अलग अलग 4 बार गिनने के बाद में हर बार वो अलग अलग आ रहा है, तो फिर इसके अंदर से कौन सा डिस्टेंस आप लिखेंगे या कौन सा डिस्टेंस लेंगे, तो ऐसे केस में फिर आपको इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू MPV ये निकालनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसका मतलब होता है एवरेज और मीन, एवरेज और मीन वैल्यू। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, तो यहां पे आपको सीधा सीधा करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस AB डिस्टेंस का जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी। सो हियर यू हैव 3.285 प्लस 3.095 प्लस 3.105 प्लस 3.195 एंड ऑल डिवाइडेड बाय 4, यानी इसका मतलब हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला यहाँ पे। सो एवरेज यू कैन फाइंड, सो 3.285 प्लस 3.095 प्लस 3.105 प्लस 3.195 और इसका चारों का एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4, यानी नंबर ऑफ वैल्यू 4 है हमारी, इसलिए तो ये आ गया 3.17 मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस AB जो है ये 3.17 मीटर है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस। सो लाइक वे दिस इज द वन ऑफ द वे टू एलिमिनेट द एरर इन द ऑब्जर्वेशन। जो भी डिस्टेंस या मेजरमेंट या डायरेक्शन जो भी लिया, तो आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और उसका मीन निकाल सकते हैं या एवरेज निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी योर डिस्टेंस। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू you can calculate. So that is the one of the way to eliminate the error. Now here most probable value तो हमने निकाल ली, लेकिन अब हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर कितनी एरर है ये भी हमको मालूम होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जर्वेशन एक्चुअली 3.285 था, लेकिन हम लोग हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 3.17 ले रहे हैं, तो यहाँ पर एरर कितनी है, यहाँ पर एरर अलग है। ये वाला ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसके लिए एरर अलग है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे इसके लिए अलग है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन लेंगे इसके लिए अलग है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग एरर आने वाले हैं आपकी। तो फिर एरर भी आप कौन सी बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर है, या दैट ऑल्सो यू कैन नॉट फाइनलाइज। सो फॉर दैट द सिंपल इज यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर। हम लोग प्रोबेबल एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ प्रोबेबल एरर इज डिनोटेड बाय ES, सो हियर फॉर ES we can calculate the value of probable error from that most probable value. तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर error in the each observation निकालना पड़ेगा। So error in the each observation is denoted by small v because this is the value of the error. So that error you have to find out. So how we can find out that? तो ये जो error value है, ये जो mean value आ गई थी हमारी 3.17, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा observation value। तो 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 बार v की वैल्यू निकलेगी हमारी। फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन यू कैन कैलकुलेट द एरर वैल्यू, हर ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल सकते हैं आप। अब यदि v निकल गया
तो फिर आपको n भी मालूम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 4, क्योंकि 4 बार हमने ऑब्जर्वेशन लिए एक ही डिस्टेंस का। डिस्टेंस ए बी हमने 4 बार गिना, सो n विल बी योर 4 एंड फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, दैट इज द एवरेज और द मीन। तो ये तो हमने निकाल लिया 3.17, यानी यहां पे आपकी मीन वैल्यू हो गई 3.17 और ऑब्जर्व वैल्यू आपकी जो भी रहेगी, तो आप V1, V2, V3, V4 अलग अलग ऑब्जर्वेशन के लिए आप एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। अब जैसे ऐसा यदि आपने कर लिया, देन यू कैन यूज द फार्मूला फॉर प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का फार्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पे से आया है एंड दैट इज ES इज इक्वल टू, सो हियर here you can write down that ES is equal to plus minus 0.6745, that is the statistical formula, under root of summation V square, यानी जितनी भी एरर वैल्यू है उसका स्क्वायर और उन सभी वैल्यू का समेशन एंड डिवाइडेड बाय n minus 1. n means here number of values. So summation V square upon n minus 1 का अंडर रूट इंटू प्लस माइनस 0.6745 करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए प्रोबेबल एरर निकाल सकते हैं। सो दिस इज प्रोबेबल एरर, रिमेंबर ES, इट इज डिनोटेड बाय ES, प्रोबेबल एरर। नाउ इफ प्रोबेबल एरर यू कैन आल्सो कैलकुलेट, तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन भी निकाल सकते हैं, यानी जो मीन वैल्यू है उसके अंदर कितनी प्रोबेबल एरर है, ये है हमारी प्रोबेबल एरर, लेकिन मीन वैल्यू के अंदर प्रोबेबल एरर कितनी है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं एंड दैट यू कैन कैलकुलेट बाय फार्मूला EM, दैट इज प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। प्रोबेबल एरर ऑफ मीन इज प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट ऑफ समेशन V स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n माइनस 1। सो यहाँ पे आपको ये याद ध्यान रखना है कि यहाँ पे n इंटू n माइनस 1, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा ये समेशन को, तो आपका मीन प्रोबेबल एरर निकलता है। सो प्रोबेबल एरर ऑफ मीन हियर यू कैन कैलकुलेट लाइक वे। तो यहाँ पर प्रोबेबल एरर के लिए यहाँ पे 4 माइनस 1 ऐसा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा 4 इंटू 4 माइनस 1 एंड देन सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट EM। सो देयर इज पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबल एरर एंड प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। सो EM is equal to ES and probable error divided by root n. So that is the relation between the probable error and probable error of mean. So that three formula we have to sometimes use to calculate the probable error and to calculate the probable error of the mean. So this is the standard deviation calculation, statistical formulas are there. So where from you can calculate this probable error. So here this formula we have to need to remember for making the calculation. So probable error ES is equal to plus minus 0.6745 under root summation V square divided by n minus 1. So that formula now onward we have to remember. So in that way you can calculate the most probable value and you can calculate the probable error in your observation. तो हम हमारे ऑब्जर्वेशन में कितनी प्रोबेबल एरर है ये निकाल सकते हैं. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू एलिमिनेट दैट एरर. सो दैट इज पॉसिबल विद दिस कैलकुलेशन. सो फॉर दैट पर्पज now we will solve one problem on this. So where you have to calculate the probable error of the mean and probable error of the single observation. So ES and EM, how we can calculate that we will solve here. So in this problem it is given that in carrying a line of avils across a river, the following 8 readings were taken with a level under identical condition. यानी एक जैसे कंडीशन के अंदर ये नीचे के जो रीडिंग है वो रीडिंग यहाँ पर लिए गए. सो 8 रीडिंग्स आर देयर. 2.322, 2.346, 2.352, 2.306, 2.312, 2.300, 2.306, 2.326. तो 8 रीडिंग, एक ही डिस्टेंस है लेकिन 8 बार उसके रीडिंग लिए गए. तो अब आपको इस पे से कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन. यानी प्रोबेबल एरर we have to calculate ES and probable error of mean and EM.
ये दोनों चीज़ें हमको निकालना है. So now that we have to calculate. So we will see how it can be calculated. So as we know that the formula for probable error ES is equal to plus minus 0.6745 under root of summation V square divided by n minus 1. तो ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है. So here n is नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे यहाँ पे. So you can write down that n is equal to 8 ऑब्जर्वेशन है. Now V is the error value. तो हर एक इसमें एरर कितनी है वो निकालना पड़ेगा आपको. So you have to also calculate the most probable value भी निकालना पड़ेगा फिर अपने को. So what we will do here, so our first observation we will write down here. So that is first observation. So we will write down observation serial number 1. पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा 2.322. दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा 2.346. तीसरा ऑब्जर्वेशन है 2.352. चौथा ऑब्जर्वेशन है हमारा 2.306. पांचवा ऑब्जर्वेशन है हमारा 2.312. छठवा ऑब्जर्वेशन है हमारा 2.300. देन पांचवा सातवां है हमारा 2.306 और आठवां है 2.326. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमको दिए हैं. नाउ ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन. अब हमको यहां से निकालना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एमपीवी. एमपीवी कैसे निकालेंगे, ये सारों का एवरेज करेंगे. सो वी कैन मेक दिस समेशन ऑफ दिस और उसका एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग फिर. तो एवरेज के लिए 2.322 प्लस 2.346 प्लस 2.352 प्लस 2.306 प्लस 2.312 प्लस 2.300 प्लस 2.306 प्लस 2.326 और इसका टोटल डिवाइडेड बाय अपने को करना पड़ेगा 8. तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी यहाँ पे. सो टोटल इज 18.57 और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है अपने को एमपीवी. तो इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा 8 से. सो दैट विल बी डिवाइड बाय 8. सो यू विल गेट 2.3215. 2.32125 ये आ गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी मीन यानी एवरेज, यानी वैसा आप यदि बोलेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है तो आप बोल सकते हैं कि भाई 2.32125 ये ऑब्जर्वेशन हमारा हो सकता है. दिस इज मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. अब ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के अंदर एरर कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबल एरर. So that we have to calculate. So you have to use the formula for ES is equal to plus minus 0.6745 under root summation V square divided by n minus 1. तो यहाँ पे V चाहिए हमको और वो भी चाहिए V square और फिर उसकी सम चाहिए. So first we have to calculate V. तो V निकालने के लिए यहाँ पे ये मीन वैल्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा. So here what we will do, यहाँ पे 2.32125 ये हर बार माइनस करना पड़ेगा. So from each value you have to subtract. So 2.32125. तो ये हो गई मीन, ये वैल्यू जो आ गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये हमने यहाँ लिख दी. अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके एरर निकलेंगी. सो 2.322 माइनस एरर मतलब मीन वैल्यू. तो ये हो गया यहाँ पे 0.00075. तो यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं फिर इस पर से. सो इसका वी स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5.625 इंटू 10⁻⁻⁻⁷. देन अगेन फिर से
2.346 माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो ये निकल गया हमारा 0.02475 और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 6.125 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर अगली वैल्यू जो है 2.352 माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू करेंगे तो एरर आ गई हमारी 0.03075 और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, सो 9.455 इंटू 10⁻⁻⁴। So like way 2.306 minus this, so you will get minus 0.01525 और इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग, so you will get 2.325 into 10⁻⁻⁴। देन 2.312 माइनस करेंगे, सो यू विल गेट माइनस 9.25 इंटू 10⁻⁻³ एंड वी विल मेक द स्क्वायर ऑफ इट, सो 8.55 इंटू 10⁻⁻⁵। देन 2.300 माइनस प्रोबेबल वैल्यू करेंगे, सो यू विल गेट माइनस 0.02125 और इसका स्क्वायर करेंगे, सो यू विल गेट 4.515 इंटू 10⁻⁻⁴। देन 2.306 माइनस प्रोबेबल वैल्यू 2.306 माइनस प्रोबेबल वैल्यू, so that is 0.01525 and we will make the square of it, so 2.325 into 10⁻⁻⁴, and last value is 2.326 minus probable value, so error is 4.75 into 10⁻⁻³ and we will make the square, so it is 2.25 into 10⁻⁻⁵। तो अब आपको इसका सबका समेशन करना पड़ेगा बिकॉज यू रिक्वायर समेशन वी स्क्वायर, तो समेशन वी स्क्वायर के लिए सबकी अपने को समेशन करनी पड़ेगी, सो 5.625 इंटू 10⁻⁻⁵ 5.625 10⁻⁻⁻5 नहीं -7 है, 5.625 10⁻⁻⁻7, इसके अंदर अपने को इसको ऐड करना है, सो 6.125 10⁻⁻⁴ प्लस मेमोरी, तो ये ऐड हो गया, फिर 9.455 10⁻⁻⁴ प्लस मेमोरी करना, सो दैट अगेन एडेड, देन 2.325 10⁻⁻⁴, इसको भी प्लस मेमोरी में करेंगे, सो इट विल अगेन एडेड, देन 8.55 10⁻⁻⁵ प्लस मेमोरी, सो दैट इज अगेन एडेड, then 4.515 10⁻⁻⁴ plus memory, so that is again in memory, and 2.325 10⁻⁻⁴ plus memory, so that is again added, and 2.25 10⁻⁻⁵ plus memory, and that is again added in the memory. So here you will get the 2.583 into 10⁻⁻�3, so that is the value of summation v square. So now this value is known, so you can calculate the most probable value ES is equal to plus minus 0.6745 under root of this summation v square, so that is 2.583 into 10⁻⁻³ divided by n minus 1 यानी 8 minus 1 करना पड़ेगा, so 8 minus 1 बिकॉज नंबर ऑफ वैल्यू उतनी 8 है हमारी, सो डिवाइडेड बाय अपन करेंगे 7
and then root of this into 0.6745. So that is plus minus 0.01295 मीटर. सो दैट इज द प्रोबेबल एरर. सो पहला आंसर हमारा जो है प्रोबेबल आंसर एरर निकल गया हमारा. अब हमको निकालना है ईएम. सो ईएम होता है हमारा ईएम इज इक्वल टू ईएस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन. तो ईएस है हमारा 0.01295 डिवाइडेड बाय रूट 8. तो ईएम भी निकल जाएगा प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन. सो 8 का रूट जो है वो निकल गया. सो डिवाइडेड बाय मेमोरी एंड उसको करना पड़ेगा 1/x. सो दैट इज वैल्यू इज 4.58 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा एक आंसर हो गया पहले और ये हो गया दूसरा आंसर. सो लाइक वे अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक डिस्टेंस के लिए 8 ऑब्जर्वेशन लिए तो आपका एवरेज ऑब्जर्वेशन, मीन ऑब्जर्वेशन या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑब्जर्वेशन की क्या है. सो दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट, दैट इज 2.32125 यानी एवरेज निकाल लिया आपने. अब ये एवरेज यदि निकाला तो इसके अंदर एरर कितनी है ऐसा किसने पूछा आपको. तो ये एवरेज होगी अपनी प्रोबेबल एरर होगी हमारी 0.01295 की. तो ये होगी प्रोबेबल एरर. और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन यदि पूछा तो 4.58 इंटू 10⁻³ तो इतनी एरर है. सो दिस इज द प्रोसीजर वेयर वी हैव कैलकुलेटेड द एरर. एरर हमने इसलिए निकाला कि हमको यदि एरर एलिमिनेट करना है तो इतना करेक्शन हमको करना पड़ेगा प्लस या माइनस का. सो दैट फॉर दैट पर्पज यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड देन प्रोबेबल एरर एंड प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन. सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड द हाउ द एरर कैन बी एलिमिनेटेड. नाउ सिमिलरली there are some situations that where the root mean square value we have to calculate. अब कभी कभी हमारा क्या हो जाएगा in the accumulation of the error of the known sign the summation is algebraic. यानी अभी आपको एरर मालूम है कि पहले ऑब्जर्वेशन में एरर प्लस आ गई, दूसरे में माइनस आ गई, तीसरे में प्लस आ गई. तो जो वैल्यू है उसको ऐड कर लेंगे आप तो आपकी टोटल एरर कितनी है वो दैट यू कैन कैलकुलेट. सो दैट इज द सिंपल थिंग, दैट इज वेरी इजी. वी कैन कैलकुलेट द टोटल एरर by doing the algebraic sum. That is possible. But while the summation of the random error of plus minus values can only be computed by root mean square value. अब हमारी एरर कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है और अलग अलग डायरेक्शन है उसकी. तो उसकी यदि अपने को टोटल एरर निकालना है तो टोटल एरर में क्या हो जाएगा कि कंपेंसेटिंग एरर है तो आप प्लस माइनस डायरेक्ट कर सकते. एक्यूमुलेशन ऑफ एरर ऑफ नोन साइन ये कर सकते हैं आप कंपेंसेटिंग एरर के अंदर. लेकिन क्यूमुलेटिव एरर है तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि हर बार उसका स्क्वायर लेके रूट लेना पड़ेगा और वही है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है. तो यहाँ पे एरर की वैल्यू निकालने के लिए जो पहली एरर है वो प्लस माइनस जो भी रहेंगी उसका स्क्वायर करो आप. वैसी दूसरी एरर का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो और सबका स्क्वायर को ऐड करके उसमें से उसका अंडर रूट ले लो. तो अंडर रूट लेने के बाद में आपको टोटल एरर निकलेगी यानी ई निकलेगा एरर वैल्यू. तो इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव एरर यदि एरर वैल्यू हर बार अपनी अलग अलग है तो आप रूट मीन स्क्वायर से एवरेज एरर या एरर वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो. सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अपनी एवरेज की वो क्या है, हर एक एरर का स्क्वायर और उसको प्लस करके उसका अंडर रूट. सो दैट इज द सिंपल थिंग यू कैन रिमेंबर फॉर कैलकुलेटिंग द एरर वैल्यू. नाउ वंस इफ यू हैव कैलकुलेटेड द एरर वैल्यू then in sometimes while doing the calculation there are again chances of mistakes. So for that purpose, so when there are two entities are there, दो distance है हमारे, for example sorry x and y are the measured quantity, यानी दो distance है हमारे अलग अलग.
अब ये दो डिस्टेंस का हमको मल्टीप्लिकेशन यदि करना है, किसी एरिया निकालना है, समझ लो एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है या एडिशन करना है, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन यदि करने का है अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x के अंदर कितना एरर है, सो डेल्टा x, y के अंदर कितनी एरर है, डेल्टा y, तो x की एरर y की एरर हम लोग निकाल सकते। और यदि टोटल अपने को करना है तो टोटल करना है डिस्टेंस की, दोनों डिस्टेंस की, तो हम लोग उसके एरर का भी डिस्टेंस एरर का भी एडिशन कर सकते। सो टोटल एरर इज इक्वल टू एरर इन द x एरर इन द y, यानी पहले वैल्यू में कितनी एरर है, दूसरे वैल्यू में कितनी एरर है, दोनों की एरर ऐड करके हम लोग टोटल एरर निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एरर इज वेरी इजी व्हेन यू आर एडिंग द टू क्वांटिटीज, you are adding the two quantities. And if you want to calculate the probable error, तो probable error में पहले क्वांटिटी की एरर की स्क्वायर प्लस दूसरे क्वांटिटी की एरर की स्क्वायर और उसका रूट ले लो, तो probable error आपकी निकल जाएगी। So that is also one of the method where you can calculate the probable error. लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस का एडिशन है, पहला डिस्टेंस प्लस दूसरा डिस्टेंस। So in that case you can use this formula to calculate the probable error. Then in some cases that it is possible that we have to make the multiplication or division of the quantity, यानी पहले डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें हमारा जो पहला डिस्टेंस है x, उसके अंदर हमारी एरर dx रहेगी, दूसरे डिस्टेंस में हमारी एरर जो रहेगी वो dy रहेगी। तो आपको यदि मैक्सिमम एरर निकालना है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला दैट मैक्सिमम एरर इज ds, सो दैट इज y dx प्लस x dy, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो एरर इन x उसको y से मल्टीप्लाई करने का प्लस एरर इन y उसको x से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी पहली वैल्यू इंटू एरर ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इंटू एरर ऑफ फर्स्ट वैल्यू। तो ऐसा करके दोनों का प्रोडक्ट लेके मैक्सिमम एरर हम लोग यहाँ पर निकाल सकते। सो इफ देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन, यदि डिवीजन है वहां पे, तो डिवीजन है तो वहां पे अपने को मैक्सिमम एरर निकालने के लिए जो ds है, तो उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू की एरर को डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा y से, क्योंकि x डिवाइड बाय y प्लस x इंटू dy अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहां पर भी इस प्रकार से ये फार्मूला मैक्सिमम एरर के लिए निकाल सकते हैं। सो दिस इज समटाइम्स रिक्वायर, but you must know what is exactly the how maximum error can be calculated when there is a multiplication of the quantity or when there is a division of the quantity. And sometimes you also require to calculate the probable error. तो probable error यहाँ निकालने के लिए भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर x और y, यानी ये पहली क्वांटिटी इंटू दूसरी क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है क्वांटिटी का, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये ब्रैकेट से, दैट इज एरर डिवाइड एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय फर्स्ट क्वांटिटी उसका स्क्वायर प्लस एरर इन सेकंड क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी उसका स्क्वायर, और ये दोनों की टोटल करके समेशन डिवाइड बाय अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने समेशन v स्क्वायर डिवाइड बाय n यही किया है हमने यहाँ पे। सो इन दैट वे एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई, सो यू विल गेट द प्रोबेबल एरर। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। यदि डिवीजन है तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, और ब्रैकेट में आपका ये इतनी एरर इतने डिस्टेंस के लिए है तो उसका स्क्वायर प्लस इतनी एरर दूसरे डिस्टेंस के लिए है उसका स्क्वायर, और दोनों के एडिशन करके उसका अंडर रूट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय वाई करेंगे, सो यू विल गेट द प्रोबेबल एरर। सो इन केस ऑफ डिटेल कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबल एरर इफ समटाइम्स रिक्वायर, so you must know this basic procedure. So this formula you can refer in the book and you can calculate the probable error in your observation, or you can also calculate the maximum error in our calculation. लेकिन इसका काम प्लेन सर्वे में हमको कम पड़ता है, but its work more is required, that is in geodetic survey, because in the geodetic survey you need to maintain the more accuracy. हर एक क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना पड़ेगा। So in the next subject, advanced surveying subject, we will see that further there how this probable value and accuracy and error can be exactly eliminated. So here हमने मैथमेटिकल वे से हम लोग को एरर को एलिमिनेट कैसा कर सकते वो हमने देखा है। तो एलिमिनेट तो हम नहीं कर सकते, एरर को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको कैलकुलेट करके उतना करेक्शन लगा सकते।
तो हम लोग मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती, प्रोबेबल एरर कितनी आ सकती, ये हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट यदि हो गई एरर तो उसको करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं उसका, और करेक्शन करके आप करेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने एरर कैलकुलेट कर ली तो ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस एरर करेक्शन, तो आपका करेक्टेड वैल्यू निकल सकती है। एंड फॉर दैट दिस कंसेप्ट ऑफ परमिसिबल एरर, मैक्सिमम एरर, प्रोबेबल एरर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये हमको मालूम चाहिए whenever you need to apply this type of correction. So here there are other types of procedure are there जहां पे हम लोग हमारी एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो अनदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर यदि कोई हमारी एरर आ रही है इंस्ट्रूमेंट के वजह से, सो दैट ऑल्सो वी कैन एलिमिनेट। सो इसके पहले जो हमने एरर कैलकुलेट की वो हमने मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें से एरर एलिमिनेट करने की कोशिश की। अब यहाँ पे हम लोग टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट करके इंस्ट्रूमेंट में की एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो फॉर एलिमिनेशन ऑफ एरर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट वी कैन डू द टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेप, चेन, थियोडलाइट, कंपास, प्लेन टेबल सर्वे या और एनी अदर सर्विंग इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग, and if you know that in that instrument there is some error or there is some problem, so that problem you have to eliminate, and that problem or that error can be eliminated by doing the temporary and permanent adjustment of that instrument. तो सर्वे के अंदर जब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप सीखने वाले हैं तो हर बार आपको हर एक यूनिट के अंदर टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट का काम पड़ने वाला है। यदि आपने कंपास यूज किया तो आपको टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ कंपास ये आ सकता है। लेवल यूज करेंगे तो टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, ट्यूबलाइट इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंट एंड टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ट्यूबलाइट। ये भी ऐसे काम अपने को करने पड़ सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट। सो इट कंसिस्ट ऑफ द सेटिंग ऑफ इसेंशियल पार्ट्स इनटू देयर ट्रू पोजीशन रिलेटिवली टू द ईच अदर। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके जो पार्ट है वो जैसे होने चाहिए, जिस जगह पे होने चाहिए, जिस कंडीशन में होने चाहिए, उस कंडीशन में उसको सेट करना। इसका मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट की एडजस्टमेंट करना। यानी हम लोग बॉक्स में से इंस्ट्रूमेंट कोई निकाल रहे या हम लोग टेप निकाल रहे तो टेप को हमको एक में ऐसा उलझा हुआ थोड़ी रख सकते, उसको अपने को बराबर सिस्टमेटिक खोल के सीधा करना पड़ेगा। So for that you require to be carry out some operation and that operation is called as adjustment. So they are done after the manufacturing of the instrument for the calibration of the accuracy of the instrument. जब कंपनी अपना इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर कर लेती तो वो इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के पहले उसका अपने को करना पड़ता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब यह है कि जितना डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं 1 मीटर, तो टेप ने 1 मीटर का डिस्टेंस गिनना चाहिए। या आपने एंगल कैलकुलेट किया 25 डिग्री का, तो 25 डिग्री का ये एंगल बराबर कैलकुलेट होता कि नहीं होता, उतना ऑब्जर्वेशन आता कि नहीं आता वो इंस्ट्रूमेंट से, ये इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़ता। सो दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो मैन्युफैक्चर होने के बाद में इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन में यह तय किया जाता है कि जितना डिस्टेंस या जितनी वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं उतनी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट ने ऑब्जर्व करनी चाहिए। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग की वो करना, एंड दैट इज नेसेसरी। अब ये जो है ये तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एक बार मैन्युफैक्चरर करके आपको दे देगा, तो आप इंस्ट्रूमेंट से बराबर टेप से 1 मीटर का डिस्टेंस गिन सकते, क्योंकि टेप के ऊपर बराबर 1 मीटर के हिसाब से ही मार्किंग करे वाले हैं बराबर। सो इट इज वेरी सिंपल, बट बिकॉज ऑफ सम फ्रीक्वेंट यूज देयर आर सम चांसेस। सो ये भी हमको देखना है कि इफ देयर आर सम डैमेजेस और फॉल्स यूज ऑफ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द परमानेंट एरर ऑकर इन द इंस्ट्रूमेंट। आपने उसकी जो सेटिंग है मैन्युफैक्चरिंग करते समय की उसको गड़बड़ कर दिया तो आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो फिर वो एक्यूरेट रीडिंग आपको देगा नहीं। तो जब ऐसी केस आ जाएंगी तो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर परमानेंट एरर आ जाएंगी।
यानी मैं ऑटो लेवल से या थियोडलाइट से एंगल गिन रहा हूं, तो एंगल 25 डिग्री का भरने के बजाय हर बार 1 डिग्री ज्यादा भर रहा, इसका मतलब 1 डिग्री की एरर मेरे इंस्ट्रूमेंट में आ गई। सो दैट इज परमानेंट एरर में अकर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए फिर से हमको वो इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चरर के पास में ले जाके उससे और कैलिब्रेट करवाना पड़ेगा, ताकि फिर 25 डिग्री का एंगल हो 25 ही डिग्री बताए बराबर। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सो ऑल दैट इज रिक्वायर एंड दे परमानेंट एरर को एलिमिनेट करने के लिए जो एडजस्टमेंट लगती है उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जो तात्पुरती एरर हटाने के लिए अपने को जो सेटिंग करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट। सो व्हाइल सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट इन सच पोजीशन सो एज टू स्टार्ट टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, यानी मुझे अभी एंगल सेट करने के लिए, एंगल लेने के लिए थियोडाइट को सेट करना है, तो मैं इनिशियली उसके ऊपर एंगल कितना सेट करूंगा, 0 डिग्री का, क्योंकि मैं 0 करूंगा तभी तो मुझे एंगल घुमाने के बाद में कितने डिग्री का आया ये पता चलेगा। सो आई हैव टू सेट द इंस्ट्रूमेंट एट इट्स इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस गिनने के लिए मुझे बराबर स्टार्ट का पॉइंट और पॉइंट को लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं इधर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस मैं गिन सकूंगा। तो ऐसा जो काम है, सो व्हाइल सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट इन सच ए पोजीशन टू स्टार्ट टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लेने को शुरू करने के लिए जो स्थिति में अपने को इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़ता, सो दैट डिजायर ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्यूरेटली टेकन, यानी ऑब्जर्वेशन हमको बराबर लेते आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट आपको हर बार करनी पड़ेगी, और परमानेंट एडजस्टमेंट ये एक ही बार करनी पड़ती। जब इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर कर लेते तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता, और कैलिब्रेट करने के बाद में फिर वो इंस्ट्रूमेंट बराबर जितना रीडिंग चाहिए उतना रीडिंग बराबर दिखाता है। लेकिन यदि उसका गलत इस्तेमाल हो गया, फॉल्स इस्तेमाल हो गया, कुछ डैमेजेस आ गए, उसके कुछ पार्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर से परमानेंट एरर आ सकती है, और वो परमानेंट एरर रिमूव करनी है तो फिर से आपको परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर। सो टू एलिमिनेट द इंस्ट्रूमेंटल एरर वी नीड टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट, then we have to ensure the permanent adjustment of the instrument is proper or not, and then before taking the observation we have to make the temporary adjustment also to set the instrument to at its original or 0 position and then start the observation. So for any type of survey, अब इसके आगे हम लोग हर यूनिट में जो सर्वे सीखेंगे वो हर सर्वे के अंदर आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट ये हर बार करना ही पड़ेगा, या मालूम होना चाहिए अपने को। परमानेंट एडजस्टमेंट तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट एडजस्टमेंट एंड टेम्पररी एडजस्टमेंट। सो हियर द टेम्पररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट का यदि हम लोग इधर डिफरेंस देखना चाहेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट ड्यूरिंग द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते, बट बिफोर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट यू नीड टू डू द परमानेंट एडजस्टमेंट। इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के पहले ही, शुरू करने के पहले, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में परमानेंट एडजस्टमेंट आपको पहले ही करनी पड़ती। सो इट इज बिफोर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, इट इज ड्यूरिंग द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द डिफरेंस। देन टेम्पररी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स एवरी टाइम, हर बार इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो पहले टेम्पररी एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट रिक्वायर वंस और रेयरली, यानी एक बार कैलिब्रेशन करते टाइम पे ही लगता है। और यदि कभी फ्यूचर में परमानेंट एरर आ गई कोई कंपोनेंट पार्ट में तो काम पड़ता है। सो रिक्वायर वंस और रेयरली परमानेंट एडजस्टमेंट। देन डन बाय द यूजर, टेम्पररी एडजस्टमेंट कौन करता है, यूजर करता है। मैं यदि अभी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं तो टेम्पररी एडजस्टमेंट मैं ही कर सकता हूं, लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट डन बाय द एक्सपर्ट रिपेयरर, यानी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने वाला जो व्यक्ति है, सर्विस सेंटर वाला जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट की परमानेंट एडजस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि वो सब इंस्ट्रूमेंट को खोल के उसको ओरिजिनल लोकेशन पे बराबर सभी पार्ट को सेट करके कैलिब्रेट करने का काम ये मैन्युफैक्चरर के सर्विस सेंटर का काम होता है। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू, दैट इज द डिफरेंस। देन इट इज इजी प्रोसीजर। टेम्पररी एडजस्टमेंट बोलो तो आसान है, सीधा सीधा आपको 0 पोजीशन पे सेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है, ट्राइपॉड पे सेट करना है, तो ये सारे काम हो गए हमारे टेम्पररी एडजस्टमेंट के। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट का काम जो है ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है कि कौन सा एलन की से उसको खोलना है पार्ट को, वो कौन से लोकेशन पे रहेगा बराबर, कितने डिस्टेंस पे रहेगा, सारा चीज सिस्टमैटिक होता है। सो परमानेंट एडजस्टमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर
temporary adjustment is very easy procedure that is done by the user. Then temporary adjustment, basic knowledge is required of that instrument. जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप टेम्पररी एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज लगता है वो इंस्ट्रूमेंट का, वो इंस्ट्रूमेंट को अपने को खोलना, फिट करना, वो सारा उसका डिटेल नॉलेज लगेगा तो ही आप परमानेंट एडजस्टमेंट कर सकते हो। देन इट कैरीज आउट इन द फील्ड बिफोर यूज। जब हम लोग फील्ड में इंस्ट्रूमेंट को लेके जाते हैं और वहां पे उसका यूज करने का स्टार्ट करते तब हमको टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी पड़ती, लेकिन ये जो है कैरिड आउट इन द लैब और द सर्विस सेंटर। परमानेंट एडजस्टमेंट ये सर्विस सेंटर में जाके करवाना पड़ता है या फिर लैब के अंदर आपके पास में उसको खोलने के इंस्ट्रूमेंट होंगे तो उसके और उसका नॉलेज होगा तो ही आप परमानेंट एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो दैट इज अनदर डिफरेंस। देन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट तो आज फ्री है, यूजर को ही करना है, मुझे ही करना है इंस्ट्रूमेंट यूज करने के पहले। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट जो है ये इसको चार्जेस लग सकते हैं बिकॉज इट रिक्वायर द सिस्टमैटिक प्रोसीजर एंड इट इज डन एट द सर्विस सेंटर और द सर्विस लैब। देन इट रिक्वायर लेस टाइम। टेम्पररी एडजस्टमेंट तुरंत हो जाती, 2-4-5 मिनट का काम रहता है इंस्ट्रूमेंट को सेट करने का, लेकिन परमानेंट एडजस्ट के अंदर ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट को खोलना, उसके पार्ट फिर से रीअसेंबल करना, उसको कैलिब्रेट करना, इसके लिए परमानेंट एडजस्टमेंट को ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे इसको कम टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स नो टूल्स। टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट को जरूरत हमको पड़ती नहीं, लेकिन अपने को यहाँ पर स्पेसिफिक टूल्स लगते हैं, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो स्पेसिफिक टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परमानेंट एडजस्टमेंट। सो इन दैट वे टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ये हमको हर एक इंस्ट्रूमेंट की करनी पड़ती है। सो नाउ इन द नेक्स्ट लेसन जब हम लोग चेन सर्वे पढ़ेंगे तो टेम्पररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द चेन हमको मालूम चाहिए। जब ऑटो लेवल पढ़ेंगे तो ऑटो लेवल की भी परमानेंट एडजस्टमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट हमको लगेंगी। थ्योडलाइट पढ़ेंगे तो थ्योडलाइट की भी टेम्पररी परमानेंट एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। सो फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंट इट मे रिक्वायर दैट you may have to do temporary or permanent adjustment. So that is the difference between the temporary and permanent adjustment of the instrument. और इसका इस्तेमाल होता है एरर को एलिमिनेट करने के लिए। That is the important thing here. Now there is another one thing is there by which we can eliminate the error, and that is the principle called as principle of reversal. Principle of reversal के जरिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट में की एरर जो है वो कम कर सकते हैं। So how that is done? That we will understand here. So principle of reversal is used by reversing the instrument or the part of it, the error become apparent. ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल क्या है कि किसी पार्ट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को आप रिवर्स करके घुमाते हो तो उसकी एरर जो है वो अपेरेंट यानी दिखने लायक होती है। सो दिस कंसेप्ट वी आर यूजिंग फॉर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल and we are trying to eliminate the error in the instrument. So the magnitude of the apparent error, magnitude of the apparent error is double the true error because reversion simply takes place the error on the one side. तो यहाँ पे हम लोग यदि इंस्ट्रूमेंट को जैसा ऐसा रखा है और उसको 180 डिग्री से घुमा देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने से क्या हो जाएगा कि ये साइड की एरर दूसरे साइड में चले जाने की वजह से वो जो एक साइड की एरर थी वो दूसरे साइड में जाके डबल हो जाएंगे, फिर उसको आप रिड्यूस कर सकते। ऐसा करके करके हर बार उसको एक साइड में लाने का और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो उसको कम करने का, फिर दूसरे साइड में लेगा और जितना रहेगा उससे बड़ा हो जाएगा उसको कम करने का। एंड लाइक वे यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट द एरर। सो इन दैट वे फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अभी समझ लो यहाँ पर ये मेरे पास में एक सेट स्क्वायर है। सो सेट स्क्वायर वैसा देखा जाए तो मेरा 100% 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। तो ये मेरा सेट स्क्वायर अभी ये ऐसा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मेरे सेट स्क्वायर में एरर है कि नहीं करके। तो मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ओरिजेंटल लाइन, इसको मैंने मेरा सेट स्क्वायर लगाया और सेट स्क्वायर लगा के मैंने वर्टिकल लाइन निकाली। तो वर्टिकल लाइन मेरी यहाँ पर आएंगी। हालांकि यदि उसके अंदर एरर है यहाँ पे, तो ये एरर का एंगल जो है ये 90 डिग्री रहने के बजाय 90 माइनस ई का एरर एंगल रहेगा, क्योंकि ये एरर यहाँ पर इसके अंदर एरर है समझ लो। तो इसका मतलब जो ट्रू डायरेक्शन है हमारी 90 डिग्री की, उसके हिसाब से एरर कितनी आ गई आपकी ई। यानी मेरे सेट स्क्वायर में यदि एरर ई है तो सेट स्क्वायर मैंने यहाँ पे नीचे लगाया, तो मेरी अभी ये वर्टिकल के साथ में एरर कितनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी ई दिखाई दे रही है। तो मैंने लाइन ड्रा किया था यहाँ पे
और मुझे ड्रा करना था यहाँ पर, यानी इसका मतलब मेरे ड्राइंग में एरर आ गई ई। लेकिन यदि इस सेट स्क्वायर को मैं बराबर ऐसा रिवर्स करता हूँ इधर, तो ये एच के साथ में मैं उसको 180 डिग्री से ऐसा फ्लिप कर देता हूँ इधर। तो फ्लिप कर देने से क्या हो जाएगा, मेरी लाइन यहां पर बनेगी अभी 90 डिग्री की। तो एक्चुअली मेरी लाइन यहां पे बननी थी और पहली लाइन मैंने यहां पे बनाया था। तो अब मेरी एरर कितनी दिख रही है मुझे, बड़ी दिख रही है, 2e दिख रही है मुझे एरर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक साइड के अंदर एरर ई है और इसको यदि हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो दूसरे साइड में जाने के बाद में ये एरर जो है वो डबल हो जाती है। तो ये जो डबल एरर है फिर आप इसको कम कर सकते हो, फिर वो थोड़ी सी बचेंगी और फिर उसको रिवर्स कर दो तो और इधर के साइड में डबल हो जाएंगी, उसको और आप एडजस्ट करके कम कर दो। ऐसा हर बार आप उसको रिवर्स करके एरर को डबल करते हैं या अपेरेंट करते हैं और उसको फिर एलिमिनेट करते हैं। फिर भी और कुछ बच गई तो दूसरे साइड में ले जाके उसको फिर से अपेरेंट हो जाती है वो, फिर उसको रिड्यूस करते। फिर एक समय ऐसा आता कि आप इंस्ट्रूमेंट को ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो, यानी रिवर्स पोजीशन में रखो या ओरिजिनल पोजीशन में रखो, तो आपको दोनों भी साइड में उसकी एरर नहीं मिलेगी। सो दैट वे by using the principle of reversal also we can eliminate the error, and particularly this principle of reversal is used in case of the telescopic instrument. तो टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में आपका ट्रू वर्टिकल एक्सिस ये वाला होना चाहिए और ये वर्टिकल एक्सिस के साथ में आपका वर्टिकल एक्सिस के साथ में आपके टेलीस्कोपिक बबल ट्यूब ऐसी होनी चाहिए थियोडलाइट की या ऑटो लेवल की। सो दिस इज ट्रू वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज एक्चुअली, लेकिन आपके एरर इंस्ट्रूमेंट में यदि एरर है तो आपका एक्सिस यहां पर रहेगा ऐसा, तो आपकी एरर जो है वो यहां पर है ई। अब ये इंस्ट्रूमेंट को आप यदि 180 डिग्री घुमाते हो ऐसा तो ये इंस्ट्रूमेंट ये वर्टिकल एक्सिस पे नहीं रोटेट होगा, वो रोटेट होगा ये वाले एक्सिस पे। तो ऐसा वो घूमेगा तो आपकी जो बबल ट्यूब की यानी परपेंडिकुलर जो टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप ऐसा तिरछा हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि पहले इसके अंदर यहां पर जो एरर थी वो एरर यहां पे 2e दिख रही है अपने आप को, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टल था अब ये तिरछा हो गया। अब ये टेलीस्कोप को आपको एडजस्ट करके वर्टिकल करना पड़ेगा, तो ये 2e एरर को जो है आप 0 कर देंगे, तो ये आपकी एरर आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप इसको रिवर्स करके ओरिजिनल पोजीशन पे लाओगे तो कुछ एरर उसके अंदर बची होगी, तो वो एरर इधर आने के बाद में फिर से डबल हो जाएगी, फिर उसको एलिमिनेट करो। ऐसा करके हर बार आप इंस्ट्रूमेंट को 1 या 2 बार 3 बार ऐसा 180 डिग्री से रिवर्स करके उसके अंदर की जो एरर है अपेरेंट एरर उसको आप हर बार एलिमिनेट करते जा सकते हो। सो दैट व्हेन वी आर एक्चुअली यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप और लेवल जब पढ़ेंगे हम लोग थियोडलाइट, so there we will see that how this temporary adjustment or permanent adjustment can be done and how by using the principle of reversal we can eliminate the error in the instrument. So that we will see in our further course of the lessons. So here in this lesson now we have seen that how the most probable value is calculated, how the root mean square value is calculated, then what is the principle of reversal, and then how the permanent and temporary adjustment is done, and how there is a difference between the temporary and permanent adjustment. So for this lesson number 5 we will stop here for this lesson, and in the next lesson again we will see that the important topic, that is maps and the scale, क्योंकि हमारा सर्वे का पर्पज है कि नक्शे बनाना, मैप बनाना और उसके ऊपर वो स्केल से बनाना उसको सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग वे से। So regarding that in the next lesson we will learn maps and the scale. So thank you for watching this video lecture. Thank you.